Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So this is the lecture number 3 of Unit 3. Unit 3 which is Reading and Writing Skills. और ये lecture number 3 में हम official letters के बारे में आज discussion करेंगे. ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, let me just request you once again that if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I keep on posting over here. So I keep on posting here the videos which are related to communication skills, your soft skills, your personality development, your spoken English skills, your vocabulary development, and a lot of things which are really sufficient to establish yourself as a incredible communicator. So make sure that you hit the bell icon and you keep on getting all the notifications. So without further ado, let's go ahead and start discussing our today's topic, which is official letters. So our today's topic is official letters और ये हमारा यूनिट 3 रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का लेक्चर नंबर 3 है. इससे पहले हम 2 लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दोस लेक्चर्स एंड ओनली देन यू शुड कम हियर सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द एंटायर यूनिट. सो वंस अगेन दिस इज द BAS 105205 syllabus or the code, and this is specifically for AKTU first year students. So this is the new syllabus which was actually brought out in November 2022. So let's go ahead and start discussing our today's topic. So हमारा आज का टॉपिक बच्चों है ऑफिशियल लेटर्स, जिसमें कि हम नोटिसेस के बारे में मेजर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल लेटर्स में और भी कई सारी चीजें आती हैं, बट ऑफिशियल लेटर्स में हमारा यहाँ पे नोटिसेस से ही मेजर मतलब है. हम नोटिसेस के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की कि व्हाट आर द लेटर्स. ऑल्दो यू नो अबाउट इट, बट यस वी विल जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द डिटेल्स सो दैट यू कैन एक्चुअली डोंट स्किप एनीथिंग. So writing letters is an art and it is mastered through practice. पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि लेटर्स को लिखना एक आर्ट होता है और वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है. अगर आपसे एकदम से बोला जाए लेटर लिखने के लिए तो यू विल डेफिनेटली बी कमिटिंग अ लॉट मेनी मिस्टेक्स. नंबर 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड. यानी कुछ लोगों को लगता है कि भाई अब तो ईमेल की दुनिया है, अब व्हाट्सएप मैसेजेस की दुनिया है, लेटर्स का क्या योगदान है. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि हाउ टू राइट अ लेटर, वेदर यू आर टाइपिंग इन अ चैट बॉक्स, you are typing in an email, or you do whatever, but the format will always remain the same. The format will always be like that only. Okay, so make sure that you understand how to write letters effectively. Only then you guys would be able to mail properly, send some notices properly. A lot many things would be very much dependent upon the current, or rather I should say the traditional format of letters. Number 3, letters develop social discourse, strengthen business relationships, and win over the officers and employers. तो लेटर्स जो हैं वो आपका सोशल डिस्कोर्स यानी सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, स्ट्रेंथन बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किए जाते हैं, एंड देन ऑल्सो टू जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन और हैव अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज. आजकल उन लेटर्स की जगह जो कागज पे लिखे जाते थे, जो पेपर्स पे लिखे जाते थे, उनकी जगह आजकल ईमेल्स यूज होती हैं, बट द फॉर्मेट मोर और लेस रिमेन्स द सेम. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट लेटर्स इफेक्टिवली. सो लेटर्स कैन बी ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं. Number 1 is a formal letter and number 2 is the informal letter. वैसे तो नाम से ही आप काफी कुछ समझ जाते हैं, but again we need to explain a little bit. Formal letters include business letters, application for jobs, letters for editors, letter for officers and letters for complaints to authorities. चाहे आप लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, चाहे आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, whether you are simply writing a business letter or you are applying for a job through the cover letter, all these letters come under the category of formal letters. Formal letter का मतलब जहां पे कुछ rules and regulations follow होते हैं, जहां पे कुछ code of conduct होते हैं which you need to follow. Formal का मतलब ये होता है, formal का मतलब like you need to follow certain code of conduct. Okay, and then informal letters are written to friends, relatives and acquaintances. So any person who is in your acquaintance or who is your relative, where you can be a little bit formal or rather you can be completely casual, वहां पे आप informal communication यूज करते हैं. जैसे आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, अगर किसी लेटर के थ्रू करेंगे, if somebody lives outside or somewhere else, then at that time it would be very much informal letter. So what exactly is going to be the difference? We're going to see that in like quite detail, so don't worry about that. So let's go ahead.
अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब हमारा जो मेजर फोकस यहाँ पे है वो फॉर्मल लेटर्स पे है, तो हम केवल फॉर्मल लेटर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेज एंड इफ यू रिक्वायर टू सेंड एनी बिजनेस कम्युनिकेशन विच नीड्स टू बी प्रोफेशनल, इट इज बेस्ट टू यूज द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यूज करना हो जो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, या जहां पे आप किसी किसी सीनियर से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हो रहा हो, then it should always be formal in nature. Okay. A formal letter is typically written to authorities, dignitaries, official colleagues, and business associates, and not to personal acquaintances like friends and family members. अब यहाँ पे ये बात भी ध्यान देनी है कि फॉर्मल लेटर को अगर आप इनफॉर्मल जगह पे भेजेंगे या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, देन इट वुड बी वे टू मच एंड प्रोबेबली इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड और इट माइट बैकफायर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप फॉर्मल लेटर्स को फॉर्मल जगह पे ही या फिर फॉर्मल एनवायरमेंट में ही यूज करें। फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज को इनफॉर्मल एनवायरमेंट में यूज करने से the plan or you can say the process may backfire. Okay. Major types of formal letters. अब हम बात करते हैं types of formal letters की। Formal letters, there are numerous number of types. Rather, I would be just taking only the major types here. So for example, the first is the official letter, second is the business letter, then sales letter, inquiry letter, acceptance letter, appointment letter, claim letter, cover letter, complaint letter. So there can be a lot of letters, right? Any formal communication which you are having through a letter or through a written communication, that will always be done through the formal letter only. But here we are particularly interested about only two types of formal letters. Number one is the official letter and number two is the business letter. So we would be talking about them. We would be understanding what are the differences between official and business letters. And then we would try to explore a little bit about both of these terms, that how exactly we can just go ahead and talk about different types of official and business letters. Okay, so let's first of all understand the difference between official and business letters. तो हम ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स के डिफरेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है पर्पस। तो ऑफिशियल लेटर का पर्पस क्या होता है? पर्पस इज टू सर्व द ऑफिशियल इंटरेस्ट। ऑफिशियल इंटरेस्ट मतलब ऑफिस के इंटरेस्ट को सर्व करना। बिजनेस से मतलब नहीं है, बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग। बिजनेस मतलब जहां पे कुछ रेवेन्यू इन्वॉल्व हो, जहां पे कुछ प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व हो। बट ऑफिस में लाइक एक एनजीओ का ऑफिस भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के एम्बिट में आ सकता है, राइट? सो इफ एन एनजीओ इज नॉट इंटरेस्टेड इन अर्निंग अ प्रॉफिट बट स्टिल it's releasing some sort of official notice, then it's a official communication or official interest. Business communication, the purpose is to create a maintain business or business relationship. जब आपका मेजर पर्पस बिजनेस को मेंटेन करना या बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है, तब आप जो है बिजनेस लेटर्स यूज करते हैं। यहां पे जनरली किस तरह के लेटर्स आते हैं? विल सी द एग्जांपल। एन ऑफिशियल ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर और नोटिसेस आर एक्सप्रेस थ्रू एन ऑफिशियल लेटर। जब आप किसी को नोटिसेस भेजते हैं, गवर्नमेंट नोटिसेस आपने पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे, नोटिसेस के माध्यम से वहां पे गवर्नमेंट काफी सारे अनाउंसमेंट्स करती है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन सर्कुलर, यूनिवर्सिटी का सर्कुलर, एकेटीयू का सर्कुलर जो आता है, दैट आल्सो कम्स अंडर द ऑफिशियल लेटर कैटेगरी। एंड इन दिस वे अदर ऑफिशियल ऑर्डर्स, ठीक है, जो भी आपके न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट पब्लिश करती है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिश करती है, या लाइक एनी इंस्टीट्यूशन विच पब्लिश, all comes under the category of official order or official letter. But what comes under the business letter? Trading letter, various functions of business such as trading letter, manufacturing, marketing, human resource activities, procurement of material acquisition, disposition, credit management, advertisement of the product line, liaising with the various private and government bodies are dealt through the various business letters. यानी जब भी कभी आपका कम्युनिकेशन बिजनेस के मद्देनजर या फिर बिजनेस को माइंड में रखते हुए होता है, बिजनेस ही आपका मेजर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तब आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो जनरली क्या होगा? बिजनेस लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। अ स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। ऑफिशियल लेटर में स्ट्रक्चर जो है वो प्री डिटरमाइंड और स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल फिक्स्ड, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? वो सदियों से ऐसी चली आ रही है। एनी टाइप ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर कैन बी फॉलोड हियर। अगर आप बिजनेस लेटर्स की बात करें तो कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। विल शो यू टू स्पेसिफिकली मेजरली यूज्ड type of structures or the formats, and then out of them you can actually use any of one. Number 4, there may or may not be any salutation. Salutation का मतलब क्या होता है? जैसे हम स्टार्टिंग में डियर मैम, डियर सर या फिर इस तरीके से कुछ यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड द सैल्यूटेशन। ओपनिंग सैल्यूटेशंस बोलते हैं हम उनको। तो आपके जो ऑफिशियल लेटर है उसमें ऑफिशियल या ओपनिंग सैल्यूटेशन की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर जो होता है दैट इज फॉर अ लार्जर पब्लिक और दैट इज फॉर अ लार्जर you can say a group of people or maybe a complete city or complete society, right? That's not for particularly written for a particular person or particular, you can say, one single person. So that's why it is not it doesn't have any sort of opening salutation.
But your business letter is always written to some authority, one single person, one particular organization, or any person who is actually heading that organization. So that's why salutation is very much compulsory. In the same way, नो कर्टियस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यहां पे कोई भी कर्टियस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस लेटर में कर्टियस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज अ मस्ट इन सच लेटर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या है कि जैसे हम एंड में लिखते हैं योर सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, इस तरह के जो हमारा क्लोजिंग होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कर्टियस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इट कैन बी यूज्ड बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के मेथड्स में यूज किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप दोनों यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमेशा डायरेक्ट स्पीच ही यूज की जाती है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पता है। इट मींस यू विल बी कम्युनिकेटिंग इन अ डायरेक्ट वे। ओके, रिटन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एंड ट्रेडिशनल लैंग्वेज। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती है ना, वो ट्रेडिशनल, काफी हद तक लॉ वाली लैंग्वेज होती है, जिसको एक आम आदमी को समझने में काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। राइट, अगर आप गवर्नमेंट के नोटिस देखें, देन इट एक्चुअली रिक्वायर्स डिफरेंट विजडम और एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस टू रीड थ्रू दोज लाइंस। ओके, सो दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। नंबर 7, इसमें परसुएसिव एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज इज यूज्ड इन सच ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो सामने वाले व्यक्ति को परसुएड करना होता है, उससे बिजनेस निकालना होता है। राइट, सो इन दैट सिचुएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट परसुएसिव एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर आई मीन लाइक द मोर ब्यूटिफुल और द मोर आर्टिकुलेटेड योर लेटर इज, of course it's really going to make an impact. The relation between the sender and the receiver is not significant at all. यहाँ पे sender और receiver के बीच के relation कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि notice larger public के लिए होता है. It may be for anybody, right? It may be for everybody. But a business letter is specifically written in such a way so that it maintains or it upholds the relationship between the sender and the receiver. So the relation is the very important key factor over here. Let's go ahead. ऑफिशियल लेटर, अब बात करते हैं ऑफिशियल लेटर की। ऑफिशियल लेटर मे बी ऑफ मैनी टाइप्स लाइक ऑफिशियल ऑर्डर, नोटिसेस, मेमोस, सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑल द ऑफिशियल लेटर्स आर मोर और लेस ऑफ सिमिलर फॉर्मेट। जनरली ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही सिमिलर फॉर्मेट के होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ राइटिंग नोटिसेस। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में देखेंगे कि नोटिस का एक जनरल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आपको नोटिस लिखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप नोटिस को लिखना चाहते हैं। एंड वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द अदर टाइप शुड बी सफिशिएंट टू क्लैरिफाई द सिमिलैरिटी ऑफ फॉर्मेट। जनरली आपको सारे फॉर्मेट जो होंगे वो सिमिलर ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल लेटर हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं हमारा जो मेजर कैटेगरी है ऑफिशियल लेटर्स की, हम बात करेंगे उसमें नोटिसेस की। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे नोटिसेस के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द right format to compose a notice. So notices are a means of formal communication targeted at a particular person or group of persons. Notices generally वैसे तो larger group of people के लिए, larger group of persons के लिए लगाया जाता है, but कभी कभी वो single individual के लिए भी direct हो सकता है। It is like a news item informing such person or persons of some important event. तो नोटिस बेसिकली क्या होता है कि वो एक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, या तो किसी एक व्यक्ति को देने के लिए यूज किया जा सकता है या फिर बहुत सारे लोगों को देने के लिए यूज किया जा सकता है। दिस कैन बी एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग, एन अनाउंसमेंट ऑफ एनी इवेंट, टू इश्यू सर्टेन इंस्ट्रक्शन और मेक अपील्स एटसेट्रा। नोटिस किसी भी चीज के लिए निकाला जा सकता है। इन्विटेशन, मीटिंग का कोई इन्विटेशन है उसके लिए हो सकता है। एक अनाउंसमेंट, किसी इवेंट के अनाउंसमेंट है उसको आपको सभी लोगों को दिखाना है, उसके लिए हो सकता है। या फिर कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस या कुछ अपील्स आपको पब्लिक डोमेन में आपको प्रेजेंट करनी है, तो वहां भी आप नोटिस के थ्रू कर सकते हैं। इट इज जनरली रिटन एंड देन डिस्प्लेड एट अ पब्लिक प्लेस। पहले इसको लिखा जाता है एंड देन ये पब्लिक प्लेस पे जनरली इसको नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, वेयर इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, जहां पे सब लोग आते जाते उसको देख पाए। They can be pasted on notice boards if it meant for a wider audience. It can also be published in a newspaper. जैसे गवर्नमेंट होती है, जब इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नोटिस निकालती है या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी नोटिस, तो वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, so that it can reach to the maximum or it can penetrate into the remotest areas. जहां जितना ज्यादा हो सके उतना अंदर तक या उतना गहराई तक वो पेनिट्रेट कर पाए, जिससे कि ज्यादातर पॉपुलेशन तक वो मैसेज जो है बेसिकली पहुंच पाए। The government when it issue must publish it in national local newspapers. तो गवर्नमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, वो जनरली आपके उनके नोटिस जो होते हैं वो आपको लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर्स में देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे नोटिस का एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपका एक एग्जांपल नोटिस है, द सिटी लाइब्रेरी एसोसिएशन स्प्रिंगफील्ड मास। तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे, इसको आप कंपैरिजन भी मैं करके दिखाऊंगा कि इस नोटिस की एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि इनिशियल लेवल पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नोटिस को रिलीज किया है
उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है और डिपार्टमेंट लिखा जा सकता है। देन यहाँ पे एक बॉडी होती है, उस बॉडी के बाद यहाँ पे एक मतलब अथॉरिटेटिव सिग्नेचर्स होते हैं। इन दिस वे यू राइट अ लेटर। सो इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बेसिस पे हमने एक डेमो स्ट्रक्चर बनाई है। उस डेमो स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं कि हमारे नोटिस का फॉर्मेट कैसे होता है, देन प्रोबेबली वी कैन राइट एनी नोटिस। ओके, तो फॉर्मेट ऑफ नोटिस के बारे में बात करते हैं। सिंस नोटिसेस आर अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉट इट शुड फॉलो अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को या एक फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करना होता है। कीप इन माइंड देयर इज नो वन करेक्ट रिजिड फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल और ऑर्गेनाइजेशन कैन शो सम वेरिएशंस। कोई भी स्ट्रिक्ट या रिजिड फॉर्मेट नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक डिफरेंट फॉर्मेट ले सकता है, लेकिन उनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, वो जनरली सेम ही होता है। बट इट इज आइडियल टू फॉलो अ समवॉट सिमिलर फॉर्मेट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिफॉर्मिटी। अगर आप सही तरीके से नोटिस को यूज करना चाहते हैं, देन एक फॉर्मेट या एक स्ट्रक्चर को यू शुड कीप इट, और यू शुड एक्चुअली स्टिक टू वन सिंगल फॉर्मेट। यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको नोटिस के बारे में अच्छे से समझना है तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, तो आप कोई भी नोटिस लिख सकते हैं। तो अगर आप नोटिस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी सबसे टॉप पे होना चाहिए। जो भी इशूइंग अथॉरिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम सबसे टॉप पे होना चाहिए। बराबर में आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि लंदन सोसाइटी, तो लंदन सोसाइटी ने नोटिस आपका रिलीज किया है तो उसका नाम सबसे टॉप पे आ गया। उसके बाद आप हेडिंग डालते हैं जिसका नाम होता है नोटिस, क्योंकि ये हेडिंग डालना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये है क्या, ये डॉक्यूमेंट क्या है। जब उस पर नोटिस लिखा होता है तो दैट पर्सन विल बी श्योर कि हाँ भाई ये एक नोटिस है जिसका मेजर पर्पज है कि ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचे। देन यू विल राइट डाउन द डेट। अब डेट जो है इन्होंने तो लेफ्ट हैंड पर डाली हुई है, बट रिकमेंडेशन इसकी डेट को आप हमेशा मिडिल में नोटिस के नीचे डालिएगा, जिससे कि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहे। इसी तरीके से इन एक्सपेंडेड, अच्छा डेट जो है हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्मेट में होनी चाहिए विदाउट कॉमा। ठीक है, ये जो डेट का यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ राइटिंग अ डेट इज रॉन्ग। ओके, why I'm telling you, because I'll tell you how to write down the dates in the next lecture, जहां पे हम बिजनेस लेटर्स की बात करेंगे। तो ये इस तरीके से नहीं लिखी जानी चाहिए। उसके बाद आप डालते हैं हेडिंग, टाइटल या सब्जेक्ट। जो भी नोटिस का हेडिंग होगा या नोटिस का टाइटल होगा या नोटिस का सब्जेक्ट होगा, वो मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में वहां पे डाला जाता है। इसमें कोई वर्ब नहीं होती, इसके अंदर कोई ये यहाँ पे केवल ये मिनिमम शब्दों में जितना आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जितना कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि ईमेल में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप, तो यानी इसको पढ़ते ही सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि भाई आगे वाला नोटिस मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मेन बॉडी मुझे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें पता चल गया कि भाई ये जो नोटिस है ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में है। तो अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ब्लड डोनेशन कैंप में, तो आई विल नॉट रीड द नोटिस। और उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कंटेंट। जो भी आपका लिखना है, जो भी आपकी मेन कोर मैसेज है, वो बेसिकली कंटेंट वाले एरिया में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा मैसेज लिखा हुआ है, दिस मैसेज इज इन द कंटेंट एरिया। एंड देन फाइनली कम्स द राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। तो जैसे यहाँ पे राइटर का नेम है रॉक्स जैक्सन एंड the designation is operational manager. So in this way, whenever you are supposed to write a notice, you should always follow this specific format and make sure कि आप तो हमेशा नोटिस इसी फॉर्मेट में लिखें। If it is being asked in your examination too, even then you should write only in this specific way. Okay, now comes the another question, what is the purpose of a notice? So अगर आप नोटिस के पर्पस की बात करें तो नोटिस का पर्पस होता है 5W। 5W क्या मतलब होता है? A well-written notice is that which inform readers about these 5W. Number one, what is going to happen? नोटिस को पढ़ के ये पता चल जाए कि भाई आखिर में होने क्या वाला है, right? नोटिस बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन में what is going to happen that should be very much visible. Number two, where it will take place. ये कहाँ पे होने वाला है. Number three, when will it happen? The date or the time. Number four, who are eligible for it? It means if that notice wants you to participate in some sort of activity or event, whether you are eligible or not, you need to understand that part. So that should also be given in the notice. वरना होता क्या है कि नोटिस पढ़ने के बाद लोग ढूंढते फिरते हैं उन लोगों को किससे कनेक्ट करें और कैसे पता लगाएं कि भाई हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसी तरीके से whom to contact for further information, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, then there should be at least one single point of contact who the person can contact, who is actually reading the notice and actually having some sort of query. So how exactly he can contact with that person? So there should be that information too. So these 5 W's should be clearly mentioned and clearly described in notices. Next is important point for writing notices. अगर आप notice write करना चाहते हैं, notice लिखना चाहते हैं, तो there are certain important points which you need to consider. Number one, highlight the title and notice, make it bold और underline. जो भी आपका टाइटल हो उसको हमेशा बोल्ड और अंडरलाइन करिए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को क्लियरली पता लग जाए पूरी बॉडी पढ़ने से पहले कि ये नोटिस किस बारे में है।
ऑलवेज ट्राई टू यूज पैसिव वॉइस। जब भी कभी आप नोटिस का यूज करें तो मेक श्योर कि डोंट मेक इट पर्सनल, डोंट मेक इट डायरेक्ट, ऑलवेज ट्राई टू यूज पैसिव वॉइस, ठीक है। तो रादर देन टेलिंग आई वांट यू टू डू इट, आप सिंपल लिख सकते हैं इट शुड बी डन और इट शुड बी कंप्लीटेड बाय दिस डेट। ओके, तो उसमें कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस हमें यूज नहीं करने होते हैं या फिर हमें कुछ स्पेसिफिकली डायरेक्टली वहां पे यूज नहीं करना होता है। मेक श्योर कि आप इनडायरेक्ट वॉइस को ही यूज करें। Try to keep the body of the notice within the limit of 40 to 50 words. Notice cannot be longer than one page at all. एक पूरे पेज में, बल्कि rather than having it complete one page, make it sure that you are actually condensing the entire information in maximum 40 to 50 words. Use simple words and easy to understand short sentences. If you are writing long sentences, the person who is actually reading the notice might be from different background. The people might be from different backgrounds. Some might be very much less educated, some might be really educated. So your notice should be for everyone. So in order for everyone to understand your message, the words should be you can say minimum, but they should be simple and the sentence structure should be short and small so that everybody can understand your message. Use only formal language to write. No informal language, no abbreviations, no slangs. There should not be any such type of thing which is actually making it an informal communication. Not at all. Keep it precise and short. Repetition of word is not allowed. Repetition, अपनी बात को घुमा फिरा के कहने की आदत नहीं होनी चाहिए। घुमा के फिरा के नोटिस में नहीं कहा जाता है। एकदम क्रिस्प, एकदम डायरेक्ट, एकदम टू द पॉइंट, बिल्कुल रिपीटिशन ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए। ओनली प्रिसाइज एंड वेरी वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन। मेक इट प्रेजेंटेबल एंड क्लियर टू रीड। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल एंटर हुए जा रहे हैं या फिर उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मेक श्योर कि वो रीडेबल हो, प्रेजेंटेबल हो। Make your notice catchy and appealing. Try to make it catchy and appealing. If you can use the colors, make sure that you are using the colors, but not too much. Of course, to a balanced view. And apart from that, also use the font, which is very clear to understand. And use standard abbreviations whenever necessary. Do not use non-standard abbreviations or which cannot be understood. Only the standard abbreviations which can be understood by every single person. Okay, so now characteristics of notice. Notice के क्या characteristics होते हैं? Some important characteristics of notices are number one, agenda. Agenda मतलब इस notice का agenda क्या है, basically वो क्या communicate करना चाह रहा है, वो उसके अंदर clarity होनी चाहिए. नंबर टू, unconditional, वो कभी भी conditional नहीं होना चाहिए और कभी भी personal नहीं होना चाहिए. It should be always indirect. प्रॉपर टाइम, प्लेस एंड डेट उसमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही कम्युनिकेशन के पढ़ा होगा. एबीसी मींस एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन. दैट शुड बी फॉलोड इन एवरी फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो नोटिस इज एक्सट्रीम फॉर्मल कम्युनिकेशन, सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द गाइडलाइन. And then authority's name and signature should be there, because without the name of authority and signature, our notice is absolutely useless. A notice gets power only through the authority who is signing that specific notice. Okay, so make sure that authority's signature and authority's name and as well as the designation should always be there in order to get the power to the notice, or in order to get the notice to be noticed or actually read by the people who for whom it is actually intended to. Okay, so that's it, my dear students. Thank you so much for understanding, for reaching up to this point. I hope that you got each and every topic or each and every concept which I actually discussed today. If there is any doubt which you would like to ask me, make sure that you are connecting with me through the comments. You are writing in comments, or you are actually connecting with me through the WhatsApp and the Telegram channel. If there is any suggestion which you would like to give me, you can use the same means. One another thing, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस टाइमली. एंड अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, मेक श्योर कि आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें एंड सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस मोमेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ गुड डे अहेड.